How are you, pastor? Acho que o pastor é o... Okay, fine. Esse aqui. Yes. I'm fine. Esse mesmo. Praise the Lord. Fine. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Você, Paz, Bispo Newton, tenha um bom dia. Ai, Cíntia do Brasil aqui. É do Brasil. estou conseguindo Cíntia. vê-la. Tudo bem, Cíntia? Tudo ótimo, glória a Deus. Você fala de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Oh, Yes. tudo bem, Cíntia? Tudo ótimo. Vocês são da onde? São Paulo? Não, eu sou do Rio de Janeiro, mas a nossa sede é em Marília. Ah, São que Paulo. bênção, que bênção. Você também trabalha com a Índia? Sim, eu trabalho junto com o pastor David e ano que vem, em janeiro, estarei partindo para lá para fazer alguns trabalhos missionários com os irmãos. Oh, bacana, maravilha. Nós temos estamos fazendo esse trabalho da rede de apoio espiritual, mas nós temos igreja na Índia, né? Ai, que bênção. É um Estamos país que carece muito. Muito, muito. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, pastor. Deixa eu entrar. Já esteve na Índia, Cíntia? É uma Ainda conversa. não, ainda não. Vai ser minha primeira vez do ano que vem. Em nome de Jesus, eu vou conseguir. Essa pandemia vai cair por terra, eu vou chegar lá. Tivemos lá em 2012. 2012. Conhecemos um pouquinho lá. Eu estou bem animada para chegar nessa nação, nesse povo. Em nome de Jesus. E ajudar os irmãos que carecem muito, né? Uma dificuldade muito grande de plantar igrejas na Índia. A gente me ajuda com os missionários, a perseguição. Mas eu não tenho medo não, pastor. Vai na fé. Tem que ir na fé mesmo. Na fé, desse jeito. Pastor Mohan. My name is Bishop Newton Alves. I'm the founder and leader of the Church of the Newborns. ओके पास्टर बिशप हैं आप और न्यू बॉर्न चर्च के एक्चुअली वो संस्थापक हैं और साथ ही साथ वो ब्राजील से हैं. Yes. Okay? Yes. I've been serving God there 35 years. और 35 साल से लगभग वो प्रभु की सेवकाई में हैं, प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं. We have found a great teacher that can bless eyes. उनके पास जो एक अद्भुत शिक्षाएं हैं जिसके द्वारा आंखें खुले लोगों की, इसलिए वो उस प्रकार की शिक्षा रखते हैं जिसको दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं. This passage speaks of a very difficult situation that David faced. और जो कुछ आज वो बताने जा रहे हैं, जो शिक्षा उनके पास, जो पैसेज आज शेयर करने जा रहे हैं, वो समस्याएं क्या हैं उस तरह पे वो बात करेंगे. समस्याएं क्या चल रही हैं, कठिनाइयां क्या है, उसके बारे में बात करेंगे. When he returned to his city, he found it destroyed and burned. जब हम उसकी शिक्षाओं में वापस आते हैं तो चीजें क्या होती हैं, धीरे धीरे करके वो जब शिक्षा को हम नहीं समझते हैं तब चीजें वो टूटती हैं, बिखरती हैं. वो Enemy set fire to Syria and took women and children captive. शैतान जो होता है वो क्या करता है, जब आग आता है, शहरों में आग आता है, तो हम देखते हैं औरतें और बच्चे वो सारी चीजों को जकड़ लेता है. Those men lived in battles but were overcome with despair. जब होता क्या है, जब लोग रहते हैं एक प्रकार के युद्ध में, तो युद्ध क्या होता है, वो एक प्रकार से हम देखते हैं सारे चीजों के ऊपर पूरा तरह प्रभावित हो जाता है. वो David and all the men wept until they lost their strength. और दाऊद को हम देखते हैं वो सारी चीजों में उस प्रकार का मनुष्य रहा है जो सारी चीजों में फंस करके, लेकिन वो अपने सामर्थ को खो देता है. Emotions took over all of them and the despair was great. हम देखते हैं जो प्रकार का मन भावनाएं हैं लोगों की, धीरे धीरे होता क्या है, उसको वो लेता है और उस तरह से लोगों को पूरी तरह निराश कर देता है.
But David was revived in the Lord and the made a big difference. लेकिन फिर भी इस प्रकार से इस समस्याओं के बावजूद भी दाऊद जो होता है वो देखते हैं हम फिर से वो अपने आप को प्रभु में मजबूत करता है और एक प्रकार का नया प्रकार से वो बहुत सारा चीज अलग करता है, डिफरेंस करता है वो। We all have emotions and they are necessary for us to live. और जो प्रकार का मन भावना, जो एक प्रकार का इमोशन है वो हमारे जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। But we need to learn to keep faith above emotions. तो जरूरत है लेकिन फिर भी हमको सीखने के लिए कि जो विश्वास है वो हमारे इमोशन से भी कहीं ऊपर होना चाहिए। Many servants of God are discouraged and leave the work of God. तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे सेवक लोग जो होते हैं वो निराश हो जाते हैं और निराश हो जाने के कारण वो परमेश्वर की सेवकाई को छोड़ देते हैं। And then they suffer because they left the work of God. और आपको मालूम, वो छोड़ने के बाद भी परमेश्वर की सेवकाई को अपने जीवन में और भी अलग अलग तरीके से वो अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं। Often faced with difficult emotions speak louder. और फिर होता क्या है, उस परमेश्वर सेवकाई छोड़ने के बाद क्या होता है, उनके चेहरे पे निराशाएं होती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं और साथ ही साथ वो कई बार बड़े गुस्से में, बड़ा तेज से आवाज में बोलना शुरू करते हैं अपनी बातों को। The devil knows that we have emotions and works by use that to win us over. और होता क्या है, कई बार शैतान इन्हीं चीजों को मौका पा करके वो लोगों को इस्तेमाल करता है। Frustrations, rejections, tardiness, there are many situations that bring negative emotions. निराश होना, साथ ही साथ एक मतलब अपने आप को रिजेक्ट करना कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अपने आप को थका लेना, थकान महसूस करना, इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन, समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं जो नकारात्मक तरीके से व्यवहार को लाती हमारे जीवन में, जब हम परमेश्वर के सेवकाई से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। Especially in difficult times, we need to watch our emotions. और बहुत जरूरी है कठिनाइयों के समय में हम अपने जो व्यवहार है उस प्रकार उसको देखिए कि हमारा व्यवहार किस तरह का, हमारा इमोशन किस तरह का है। What is with us, but we need to keep faith above emotions. लेकिन हमको जानने की जरूरत है कि हम परमेश्वर हमारे साथ है और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विश्वास, हमारे व्यवहार, हमारे इमोशन से कहीं ऊपर होना चाहिए हमारा विश्वास। During my ministerial life, I have faced many difficult times. और आप मालूम है हमारी सेवकाई में, हमारे जीवन में कई बार क्या होता है, बहुत सारी समस्याओं का हम लोग सामना करते हैं। I am sure that if I had followed my emotions, I would have given up everything. So, कई बार क्या होता है, हम अपने व्यवहार, अपने तमाम जो हमारा बदलाव इमोशन तरीके से, हमारा इमोशन हमारे ऊपर कब्जा कर लेता है, पूरी तरह प्रभावित हो जाता है, तो कई बार क्या होता है, उसका अनुसरण करने लगते हैं, अपने इमोशन का अनुसरण करने लगते हैं और वो क्या करता है, कई चीजें हमारे जीवन में, बहुत सारी चीजों को अलग तरीके से गड़बड़ कर देता है। Be very careful with your emotions in difficult times. जब कठिनाइयां आपके साथ हों, जब समस्याएं आपके साथ चल रही हैं, आप बहुत सावधान रहिए कि कहीं विश्वास आपका कमजोर न पड़ जाए और आपका जो इमोशन है, जो आपका मानवीय, वो आपके ऊपर हावी हो जाए। बहुत सावधान रहिए। Emotions are part of the soul and faith is part of the spirit. So, जो इमोशन है वो एक प्रकार का शरीर का भाग है, आपका देह का भाग है, लेकिन जो फेथ है, विश्वास है, वो आत्मा का भाग है। We need to remember that God communicates with our spirit. और ये बहुत जरूरत है कि हमें बहुत ध्यान देने की
जरूरत है कि परमेश्वर लगातार हमारे साथ बात करे। इस बात को हम याद रखें कि हम परमेश्वर की आत्मा के साथ लगातार बात करें, परमेश्वर हमारे साथ बात करे। David is revived in God and can seek direction. और हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो परमेश्वर के तरीके को खोजता है और उसके द्वारा वो अपने आप को फिर से पुनर्स्थापित करता है, पुनर्सही करता है। From the moment David was revived in God, he received direction. और हम देखते हैं दाऊद के समय के, जब दाऊद का समय था, वो परमेश्वर की तरफ बढ़ता है और परमेश्वर के साथ वो सही दिशा को प्राप्त करने के लिए काम करता है। एक सही दिशा परमेश्वर उसको दिखाते हैं। Always keep your faith above emotions. और हो सकता है, जरूरत है कि हमारा जो विश्वास है वो हर समय हमारे मन भाव से, हमारे भावनाओं से कहीं ऊपर हो। Pastor David, thank you so much. God bless your life, family, ministry, India nation. Amen. 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 Thank you, Mr. Thank you for your great time for us, and we are so much grateful of you even. And thank you for your precious time, because there's an early morning, so we have a lot of disturb to you today morning. Meu querido, boa noite. Cíntia, prazer. Se precisar, faça contato. Você vai para onde, Cíntia? Vou para Lucknow com o pastor David. Ok, então, amém. Deus abençoe. We are abraço. praying when the corona is finished, actually, you try to come to India, visit us. You're most welcome. Yes. Amém, amém. Deus abençoe a todos, tá bom? Bless everyone. Grande abraço. Deus Have a abençoe. good day. Thank you.